قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا سیدی ارشاد فرمائیے، بقرہ عید کے دن قریب ہیں، تو ہمیں اگر بکرا پیڑی جانا ہو یا گائے منڈی جانا ہو، جانور لینے جانا ہو، تو اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ وہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی کرو، تو اس حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جس پر قربانی واجب ہو اس کے لیے یہ نیت سمجھ میں آتی ہے، یہ کرے۔ اور جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بہت بولتے ہیں، بیچنے والے بھی بولتے ہیں اور خریدنے والے بھی بولتے ہیں۔ بیچنے والا بولے گا اس میں ہمارا وارا کھاتا ہی نہیں ہے، ہمارا اتنا تو اس خرید دام بھی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یا ہم نے بولیں گے گھر کا پلا ہوا ہے اور یہ کل پرسوں تو لیا ہوتا ہے اس نے، اس طرح کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو بولیں گے بہت غریب ہے، حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ یہ سینگیں مارتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو کم بتاتے ہیں، جھوٹے دانت دکھا دیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ پونچھ کٹی ہوئی ہو نا تو پونچھ کا پیس جوڑ دیتے ہیں اور اس کو کلر کر کے وہ ٹیپ وغیرہ لگا کر تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ پونچھ والا ہے۔ طرح طرح کے دھوکے کرتے ہیں، سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو جوڑ دیں گے ترکیب سے۔ تو یہ لینے والے کو اتنی وہ ہوشیاری ہونی چاہیے کہ وہ دھوکہ نہ کھائے، اور لینے والا جو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ اتنے کا تو میں چھوڑ کے آیا ہوں، حالانکہ وہ چھوڑ کے نہیں آیا ہوتا۔ تو اس طرح کے وہ جھوٹ نہ بولے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے اور سچ بولے۔ اگر اللہ نے جگرا دیا ہے تو اگلا جو مانگے اس کو دے دے، جو مانگے وہ دے دے۔ اچھا حضور، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے لیے قربانی کا جانور کچھ پہلے سے لے لیتے ہیں، بچے لے لیتے ہیں، تو اب اگر جانور ہم پالیں تو اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس کو چارہ کتنا دینا ہوگا، اس کا خیال کتنا رکھنا ہوگا؟ اور جو بھی جانور پالے روزانہ 70 مرتبہ چارہ دکھائے اس کو، دانا پانی چارہ، یعنی 70 یہ ایک مبالغے کا ہے کہ مطلب اس کو یہ مانگے گا نہیں، ٹھیک ہے، بھوک لگے گی یا آپ نہیں دیں گے تو یہ پھر آپ نے قصدن یہ روکی ہے غذا تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ پرندوں کے لیے بھی ہے؟ پرند جو بھی جانور پرندے پالیں، مچھلیاں پالیں، تو ان کو غذائی طور پر تکلیف نہ ہو، پانی کی تکلیف نہ ہو، کوئی بے وجہ اس پر کوئی ایسی اذیت نہ ہو۔ جیسے آپ نے دھوپ میں چھوڑ دیا، وہ بیچارہ دھوپ میں پریشان ہے، آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو کہ اس کو بھی اس کی حیثیت کے مطابق ایسا ہو گرمی سردی سے بچت ہو، اس کو بیچاری کو بارش میں چھوڑ دیا ہو یہ ڈوب رہی ہے، نہیں، اس کو مطلب ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ اچھا، اب جانور لینا کیسا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں اتنا مہنگا جانور، فربا جانور لینے سے بہتر ہے نارمل جانور لے لو، غریب کی شادی کرا دو۔ یہ کہنے والے خطا پر ہیں۔ اچھا، یا اپنے یہاں بال بچوں بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، وہ بھلے بچا کر غریبوں کی شادیاں کرواتے ہیں۔ رائے خدا کی قربانی کو روک کر ایسا نہ کہا کریں۔ جو 7 حصے ہوتے ہیں، 50-60 ہزار کے جانور میں بھی 7 حصے ہو جائیں گے، 4-5 لاکھ کا جانور لیں گے تب بھی 7 حصے ہی ہوں گے، تو پھر وہ 4.5 لاکھ بچا لے کے کسی غریب کی مدد کر دیں۔ شریعت کے احکام یہ نا کہ جتنا فربا ہوگا، عمدہ گوشت ہوگا، اس کا جتنا خوبصورت ہوگا اتنا افضل ہے۔ تو یہ سب نصوص موجود ہیں، ورنہ تو قربانی نہ کرے، حج بھی بند کر دے گا، اربوں خربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، غریبوں کی شادیاں کرواتے رہو اور یہ اپنی رسمیں بڑھاتے رہے، اور کروڑوں روپے میں تو شادیاں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ شادی آج ہی سوشل میڈیا پر بات چیت چلی تھی، شادی بالکل مفت ہے، بالکل خرچہ ثابت کرے کوئی اس کا خرچہ، تو لڑکی والے کا تو 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں ہے شرعاً، لڑکے کا خرچہ ہے، وہ بھی مہر واجب ہے اس پر، صحیح، وہ مہر تقریباً 2.25 تولے چاندی ہے، کروڑوں روپے تھوڑی ہوگی، پاپا یہ تو دیکھو ہزاروں میں نپٹ جائے گا، ہزاروں بھی نہیں شاید،
1200-1500 हो सकता है, कितना मुझे याद नहीं है चांदी का क्या भाव है, इतना महंगा नहीं है। वलीमा सुन्नत है, करनी चाहिए, तो इसके लिए हाल बुक कराना शर्त नहीं है। वहाँ करोड़ों खर्च कर लेते हैं कुर्बानी के लिए, फिर ऐसी बात। और ये मतलब ऐसे मुनकिर किस्म के लोग होते हैं ना, ऐसी हरकतें करते हैं। कुर्बानी का इनका गुमराही है, कुरान करीम से साबित है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। तो ये जो कुरान को मानता होगा, अल्लाह और रसूल को मानता होगा, उलमा से मरबूत होगा, वो कभी ऐसी कमजोर बात करेगा नहीं। ये जरूरत से ज्यादा जो पढ़ लिख लेते हैं ना, जिसको हम 1.5 होशियार कहते हैं, 1.5, ये ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं और मुसलमानों को मिसगाइड करते हैं। 5 लाख का एक जानवर लें या 5 लाख के 10 लेके कुर्बान करते हैं, काफी सारा गोश्त बढ़ जाएगा। अब जो उम्दा खूबसूरत, ये देखना होगा फजीलत में। अगर वो 10 से ज्यादा उम्दा और खूबसूरत बनते हैं उस एक के मुकाबले में, और गोश्त भी उम्दा है, तो ज़ाहिर कसरत भी है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, गोश्त पहुंचेगा, खाल भी पहुंचेगी, खाने भी आपको अगर मिली तो। जी इंशाअल्लाह। आपको जानवरों की बात कर लें हुजूर, ये बताएं जी, इतना प्यारा जानवर है। अच्छा जरा लाइट इस तरफ। ये भैंसा है जी भैंसा लग रहा है बाबा माशाअल्लाह जी। अच्छा भैंस है, भैंस। तो क्या भैंस की भी कुर्बानी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा तो लोग भैंस गाय की किस्म में आएगी ना, ठीक है, कुर्बानी जायज है इसकी। घंटी बांधी हुई है इनको, ये कैसा है? ये घंटी बांध सकते हैं? घंटी का मकसद क्या? हाँ भाई, जीनत के लिए नहीं बांध सकते, ये जीनत के ये लिए। घंटी किस लिए बांधते हैं वैसे आप लोग? जानवर पता चल जाए कहाँ पर है, या वैसे ही खुश शौक में? कोई जीनत के लिए बांधते हैं। वो आदत पड़ जाए इसको कि आगे पीछे ना हो। ये तो वो ना जो इंसान आगे जाता है ना, तो ये वो नहीं, आगे पीछे नहीं होता। ये घंटी बजती है तो रुक जाती है। तो कुर्बानी के जानवर के लिए इसकी हाजत नहीं होती। इन्होंने पालना होता ना पापा कुछ महीने के लिए। हाँ वो दूध दे और ये इसके जाता है लिए। ना, जैसा किसी के घर में जाता है, उधर छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर हाथ लगा, छोटा बच्चा आ भी गया देखो, ये बात वो हाथ लगाते हैं ये ना, तो शेर का बच्चा है। वो नहीं होता, घंटी नहीं होती, जो हाथ लगाएगा वो उससे लड़ेगा। ठीक, अब घंटी की वजह से वो जो है ना लड़ता नहीं है। अच्छा डरता ये भी, जी हाँ। आदि बन जाता है। अगर सही मकसद है घंटी का कोई, फिर हरज नहीं। एक सवाल और था, मंडी शौकिया जाना कैसा? कुछ लोग हैं जानवर एक लेना है, जाना पूरा महीना है, उस बारे में क्या फरमाएंगे आप? पूरा महीना मंडी जाना है दोस्तों के साथ, बड़ी जबरदस्त तफरी होती है, रेट पूछना है, तो ये करना कैसा हुजूर? शर्रन तो इसमें कोई कबात नहीं है, गुनाह तो नहीं कहेंगे इसको। वो जानवरों का एक शौक होता है देखने का, लेकिन ये एक गैर जरूरी अम्र है, इसके बजाय कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें आखिरत की बेहतरियां हों। अब सब जाके जानवरों के रेट पूछेंगे, फिर उधर बातें। ये अलग बात है कि वहाँ जाकर मजीद फजूलियात में मुब्तला होते होंगे। लेने नहीं जाते बस ऐसी। अब हमको लेना तो नहीं, क्या दाम पूछे इसका? वो सबके दाम पूछेंगे, फिर कम कितना करोगे, आखिरी क्या करोगे, लेना फिर भी नहीं है, पता है आज परचेज करने नहीं आए। उसमें भी वो जैसे आपने शुरू में फरमाया कि झूठ की सूरतें बन सकती हैं, इम्कान होता है, जी जी जी, तंग करना होता है। बैठी होगी बेचारी, ऊँग रही होगी, तो उसको उठवाएंगे तो लाते मार के उठाते हैं, और ये दांत दिखाओ। अब वो जानवर है बेजबान, क्या बोलेगा, बार बार दांत दिखाकर हमने देखा जख्म हो जाता है अल्लाह उसके। तो ये फिर अब जुल्म की सूरतें अलग बनेंगी, वरना सिर्फ देखने के लिए जानवर जाए। अब इतने सारे आए हैं, इनको अपने ये बोलते लगे फैजान मदीना में कुछ कर रहे हैं, एक भी ना होता इसमें। 2-4 दीवाने आ जाते मेरे, ये जो जितने नहीं कोई ना आता, सबको जानवर लेकर आए, मेरी कशिश नहीं है। अच्छा, उस जानवर को इस तरह हाथ लगाया या इसकी पूंछ हमारे कपड़ों पे लग गई या हमारे कपड़े से टच हो गए, तो क्या ये नापाक हो गया? नहीं, अच्छा जब तक नजासत मुतहक्कक ना हो जाए, साबित ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जानवर अगर देखना हो तो, अगर मिसाल देता हूँ, आपको कोई जानवर पसंद करना हो तो आप क्या क्या चीज ढूंढेंगे उसके अंदर, क्या देखेंगे, ताकि आपके मुरीदीन भी हैं तो वो जानवर खरीदने जाएं तो उनका क्या अंदाज हो? सिर्फ मुरीदीन के लिए ये पैगाम है। सारे आशिकान रसूल, मदनी चैनल के तमाम नाजरीन, आपके चाहने वाले तो माशाल्लाह दुनिया भर में हैं। नहीं, जो मुसलमान के लिए एक मदनी फूल मिल जाए कि जाते वक्त क्या देखना चाहिए जानवर में? चाहता हो या ना चाहता हो, राजी हो नाराज हो मुसलमान, वाह, तो उसके लिए ये है कि इसकी उम्र की तहकीक करे। ठीक है, और बेहतर ये है कि वो 2 दांत मशहूर है जी। 4 दांत का गोश्त भी मुफीद होता है सेहत के लिए, और 4 दांत में ये कि इसकी यकीनी कैफियत हो जाएगी कि हाँ भाई ये साल भर से क्रॉस कर गया है। क्योंकि मुहक्किकीन ये बोलते हैं कि जो जानवर चरते हैं ना, तो जैसे बकरा है, तो वो साल भर से पहले जो चरते हैं वो मुंह मारते रहते हैं, खींचते रहते हैं घास, साल भर से पहले वो 2 दांत दे देते हैं, क्योंकि वो दूध के दांत जल्दी गिर जाते हैं। और जो ये बंधे हुए होते हैं ना, पकी पकाई खाने वाले,
वो साल भर के भी महीना 2 महीना ऊपर हो जाता है उनका, तब 2 दांत उनके पूरे होते हैं। फर्क है इसमें। हाँ, ठीक है। ये माहिरीन बताते अब हैं। हम क्या करें, 2 दांत देख 4 दांत बेहतरीन Confirm हो इसमें कहा कंफर्मेशन हो जाएगा कि साल भर से ऊपर कुर्बानी के काबिल है। अच्छा, एक तो ये कि उम्र वो देखे। हाँ ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें घूम फिर के देखे, जैसे हदीस शरीफ में कि कान में कोई सुराख तो नहीं है, चिरा हुआ तो नहीं है कान, ये देख लिया जाए। सुराख हो, चिरा हुआ हो कान तो कुर्बानी हो जाती है, लेकिन मकरूह तंज़ीह है, नापसंदीदा है। और अगर 1/3 से ज्यादा कटा हुआ हो तो फिर कुर्बानी होगी ही नहीं। अच्छा, ये बात लोग यूँ मुट्ठी पकड़ते हैं कि देखो मुट्ठी में कान है, ये बेचने वाले अवाम को मसाइल पता नहीं होते, तो ये बेचारे मतलब ठगा जाते होंगे। तो मुट्ठी का मसला नहीं है, किसी का आपने देखा वो इतने लंबे लंबे कान होते हैं, किसी के इतने इतने होते हैं, तो मुट्ठी का नहीं है, बल्कि वो जितना बड़ा कान है ना कुदरती, उसके 1/3 से ज्यादा कटा हुआ ना हो। सींग वाले जानवर की कुर्बानी भी हो जाती है? बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, तो और क्या देखना चाहिए? उम्र देख हाँ, ली। उम्र देख ली, फिर इसमें कोई ऐब तो नहीं है। ठीक है। आज ये जब तक मुताला नहीं होगा, मालूमात नहीं होगी, उसके उयूब की पहचान नहीं होगी उसको। ठीक, ऐब ना हो ये भी देखना है। लोग कहते हैं खुरान भी नहीं होना चाहिए। खुर्राट होना कुर्बानी के लिए रुकावट नहीं है। ठीक है। खुर्राट वो यूं हो जाता है कि जब अपने गोल से चलेगा ना, हाँ। तो ये जैसे कि हमको भी कोई अकेला घसीट कर ले जाएगा तो घबराहट तो होगी ना। बिल्कुल ऐसा। ये तो बेज़बान है, तो घबराहट होती है कि अकेला हो जाता है, तो यूं ये फिर ये थोड़ा खुराट हो जाता है। और यहाँ इनको बांध दो तो ये शरीफ है, सब गरीब भी हैं, शरीफ भी हैं। तो कुछ जानवर छोटे कद के टेढ़ी होते हैं, लेकिन होते वो भी 2-4 दांत के, तो वो भी हो जाएंगे। और 8-8 दांत के होते हैं। अच्छा। ये गेनी जी। गालिबन बोलते हैं इसको, जैसे अभी हमने देखे थे गेनी, वो एक किस्म है, और ये सिर्फ कुर्बानी के लिए गालिबन इसको परवरिश करते हैं। गोश्त तो कम होता है, तो गोश्त फरोश उसको नहीं लेगा, क्या करेगा, शौकीन लोग, महंगी बहुत होती है। ठीक है। तो अब जानवर महंगा करना अफजल है, खूबसूरत करना अफजल है, उससे दोनों में से किस चीज को देखना? ना कीमत उसकी ज्यादा हो, ठीक है, उम्दा हो। अब कीमत ये कि उसकी कीमत हो ज्यादा, ठीक है। वही ऐसा जैसे ये कीमती है, ठीक है, ये शायद कम कीमत होगा। ठीक है। तो कीमती हो, गोश्त उसका उम्दा हो, और देखने में या वैसे हसीन हो, खूबसूरत हो, निशानात बने होते हैं, धब्बे बने होते हैं रंगीन, तो जैसा भी खूबसूरत हो। ये भी खूबसूरत जानवर है, बहुत, लेकिन ज़रा एक से एक हसीन जानवर आते हैं। खूबसूरत जानवर लिया तो फिर अब उसकी खाल का क्या करे? खाल भी तो बहुत खूबसूरत होगी ना। कुर्बानी की खाल खुद भी इस्तेमाल कर सकता है अपने ज़ाती तौर पे, ठीक। और इसको अगर किसी किताब से या बर्तन से बदल लिया, जैसे यानी ऐसी चीज़ से बदल लिया कि जिसको बाकी रख कर नफ़ा उठाया जा सकता है, तो ये भी जायज़ है। हाँ, ऐसी चीज़ से बदला कि इसको अब हलाक करके नफ़ा उठा सकता है, तो फिर सदका करना होगा। तो जैसे कि अनाज ले लिया, तो अब इसको जब तक खाएंगे नहीं इसका नफ़ा नहीं मिलेगा। करेंसी के इवज़ इसको बदला, यानी बेचा इसको, तो अब ये रकम जो है ये सदका करनी होगी कि इसको ये अपने इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए बेचा कि ये किसी फलां को दे दूंगा गरीब को, या किसी इदारे के लिए बेचा, वो एक अलग सूरत है। ठीक है। अपनी जात के लिए जब बेचा तो सदका वाजिब होगा, इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको। शहजाद भाई ने बड़ा प्यारा एक सवाल किया। आपने कहा कि गोश्त उम्दा हो, जानवर हसीन भी हो, गोश्त उम्दा हो, क्या कह रहे थे? तो गोश्त तो है ना, खाने के बाद पता चलेगा ना कि उम्दा है नहीं। जानवर को देख के कैसे पता चले कि इसका गोश्त उम्दा है? नहीं, जो इंसान हो ना इसको समझ पड़े, इसको खाने का तजर्बा हो ना। वाकई जैसे कि हलवान जानवर है और पता है कि ये 6-8 महीने का गोश्त है, कैसा पोचा पोचा गोश्त होगा, अंदाजा हो जाएगा। वो मत 8 दांत का बिल्कुल बुजुर्ग, तो उसका गोश्त तो चूल्हे को टका देगा, वो नहीं गलेगा, चूल्हे को टका देगा चाहिए, फिर उसके ऊपर वाला गोश्त मुश्किल हो जाता है। जी। और जो नर हो ना मादा हो, बीच का होता है, समझे, तो उसका गोश्त तो फतह और रज़वी में लिखा है ये गलता ही नहीं है, जो कच्चा खाना चाहे खा ले, गलता ही नहीं। कुर्बानी हो जाएगी वो? नहीं, कुर्बानी भी नहीं होगी। हुजूर, कुर्बानी की खाल किसको दें अगर नेकी के काम में दे दी? मैं तो अपनी दुकान की बात करूंगा। बिल्कुल, आप पैगाम दे देना मदनी चल के नाजरीन को। ज़ाय नसीब दावत इस्लामी को कुर्बानी की खालें दे दी जाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपा, ये जो दबागत की जाती है और उस पर बैठना, दिबागत, इसके बारे में क्या फरमाएंगे?
अब बकरे की खाल पर बैठना, बकरी दुम्बा, जी इसकी खाल पर बैठने से इनकिसारी आजिज़ी पैदा होती है, सुभान अल्लाह। और चीते की खाल पर बैठने से तकब्बुर आता है। अच्छा तो हुजूर, अपनी कुर्बानी के जानवर की खाल को दिबागत कराया करके जाता हाँ अपने बैठने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मुसल्ला बनाया जा सकता है। है। सुभान अल्लाह। ये सैयदी जानवर जब आपने फरमाया कीमती हो, खूबसूरत हो, तो नॉर्मली बड़ा मजबूत कीमती जानवर जो है ना वो 6 दांत और 8 दांत का जी। होता है। तो अब एक तरफ तो गोश्त देखें तो 4 दांत का मुनासिब लगता है, और अच्छा फरबा लेने जाएं तो उसके दांत ज्यादा होते हैं। तो अब कौन सा अफजल हो गया? नहीं, अगर ये फरबा होगा और उम्दा नस्ल का होगा ना, तो हो सकता है कि बड़ी साइज का गोश्त भी। इसकी पहचान ये कि अगर गोश्त मटियाला है तो ये अच्छा होता है, गुलाबी है तो थोड़ा यानी कि गुड बेटर बेस्ट वाला हिसाब लगा ले ठीक है। कि थोड़ा फर्क है। ठीक है। और अगर बिल्कुल लाल है ना, वैसे तो लाल हलाल है ये, जी। लेकिन वो खाने में जो होगा ना, ये पक्के वो काला हो जाएगा, अल्लाह, एकदम लाल होगा। ये तो पहली बार पता चला। लाल गोश्त शायद हमें अच्छा लगता होगा, लेकिन लाल हाँ, शायद लोएस्ट लाल चर्बी से बिल्कुल ढका हुआ होगा, बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन लेकिन बहुत प्यारा लगता है। हाँ खाने के लिए इसके मतलब वो मजबूत दांत चाहिए, अल्लाह। और हाजमा भी मजबूत चाहिए। भाई कहीं मेरी गलती हो तो बता देना, तजर्बा अगर है आपको तो। पालने का तजर्बा है, शायद गोश्त का ना भी हो तजर्बा। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अब इख्तिताम की तरफ है। बड़े प्यारे मदनी फूल हमें मिले, और जैसा कि अमीर अहले सुन्नत ने भी तरगीब अता फरमाई, आपकी दावत इस्लामी जो दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत कर रही है, अगर आप चाहते हैं ये काम और आगे बढ़ता रहे तो अपने यहाँ होने वाली कुर्बानी की खालें अपनी दावत इस्लामी को देकर इस नेकी के काम में अपना हिस्सा मिलाइए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है।